Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn about the structure and the usage of present perfect continuous. आज हम present perfect continuous tense बनता कैसे है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. So let's try to understand how it is formed. Present perfect continuous tense का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. द स्ट्रक्चर इज के फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या यूज करते हो, सब्जेक्ट, देन द हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, हैव बीन एंड हैज बीन, हैव बीन एंड हैज बीन, एंड देन you use present participle. Present participle is the fourth form of the verb जिसको आप ing form of the verb भी कहते हो. I, we, you and they and plural nouns के साथ we use have, whereas he, she, it and singular nouns के साथ हम क्या लगाते हैं, has. For example, we have been living here for 20 years. We have been living here for 20 years. It means हम यहाँ पर 20 सालों से रह रहे हैं. Still we are living there. Okay, this is the positive sentence and its negative is, negative कैसे बनाते हैं, have के बाद we use not, हम not use करते हैं. For example, we have not been living here for 20 years. हम यहाँ पर 20 सालों से नहीं रह रहे. And its interrogative is, आपको पता है कि interrogative में हम क्या करते हैं, auxiliary inversion. Auxiliary inversion का मतलब क्या है कि हम स्विच करते हैं the position of जो helping verb होता है उसको before subject जो है वो रखते हैं. Have we, for example, have we been living here for 20 years? क्या हम यहाँ पर 20 सालों से रह रहे हैं. आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा. अब हम इसके यूसेज को समझने की कोशिश करते हैं. Now let's try to understand कि present perfect continuous tense किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. I have written 3 situations. मैंने 3 situations लिखी हैं where you are supposed to use present perfect continuous. The first one is when you talk about an action that started in the past and continues until now. जो past में start हुआ और present में चल रहा है तो आप कौन सा tense यूज करोगे, present perfect continuous. It means कि the action you are talking about would be in progress in present time. वो present time में क्या होगा, चल रहा होगा. Example, I have been traveling since last night. I have been traveling since last night. Now you see, I started traveling. मैंने कब जो है start किया traveling, last night. कल रात जो है I started traveling. And until now, अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, I'm traveling. तो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा, I will be using present perfect continuous. I will be saying कि I have been traveling since last night. It means कि कल रात मैंने सफर स्टार्ट किया और अभी तक मैं सफर में हूँ. और उर्दू में इसकी मीनिंग क्या होगी कि कल रात से मैं सफर कर रहा हूँ, कल रात से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ. And other example is we have been working for hours. We have been working for hours. हम घंटों से काम कर रहे हैं, हम घंटों से. Now you see घंटों से, it means कि we started working some time ago. या जो है कुछ घंटे पहले हमने काम करना स्टार्ट किया एंड अभी तक जो है वो काम चल रहा है. एंड वी आर वर्किंग, सो आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ another point that you are supposed to note is that कि since and for, since and for जब भी टाइम एक्सप्रेशन हम मेंशन करते हैं तो हम since या for लगाते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में since जो है ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही लगता है, सॉरी परफेक्ट टेंसेस में, फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो. whereas जो for है ये दूसरे टेंसेस के साथ भी लग सकता है. ओके, अब since कहाँ पे लगेगा, when you talk about the point of time. Point of time means starting point of time, starting point of time. तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, since यूज करते हो. ओके, preposition. Since means starting point of time, when you started doing something. Now in this example, I have been traveling since last night. कल रात से, कल रात is the starting point when I started traveling. Okay, likewise for example, I have been traveling since Monday. ये भी आप कह सकते हो.
ओके, आई हैव बीन ट्रेवलिंग, आप कह सकते हो कि सिंस 2 o'clock, 2 बजे से जो है 2 p.m. 2 a.m. से लेके मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, जो है वो सफर कर रहा हूँ। सो नाउ यू सी, जो भी स्टार्टिंग टाइम आप मेंशन करोगे तो यू विल बी यूजिंग सिंस, एंड यू यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन, जो आपको टाइम ड्यूरेशन लगता है, जो आपको समय लगता है कोई भी काम करने में, टाइम ड्यूरेशन, जितना टाइम आपको लगता है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, फॉर यूज करते हो, प्रीपोजिशन। वी हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स, हमें काम करते घंटे हो गए हैं, मतलब आवर्स हो गए हैं। लाइकवाइज यू कैन से कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, तुम्हारा इंतजार करते मुझे आधा घंटा गुजर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन trying to contact you, I have been trying to contact you for 3 days, मैं 3 दिनों से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। for 3 days, for many years, for hours, for 50 seconds, तो वो मतलब जो भी ड्यूरेशन आप जब भी बताओगे तो आप कौन सा मतलब प्रपोजिशन यूज करोगे, फॉर यूज करोगे। ओके, another context where you are supposed to use present perfect continuous is that कि when you talk about an action जो कि अभी हो रहा है, an action that has been happening recently, जो अभी हो रहा है, but you are not mentioning the time period, आप टाइम नहीं बता रहे, you are not mentioning the time duration, time expressions आप यूज नहीं कर रहे, तो आप कौन से वर्ड्स यूज करते हो, you use either recently or lately। रिसेंटली और लेटली ये दोनों क्या है, मतलब सेम ही वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ओके, फॉर एग्जांपल, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल टुगेदर, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल टुगेदर लेटली, यू कैन रिप्लेस द वर्ड लेटली विथ जो है रिसेंटली। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल टुगेदर लेटली का मतलब क्या है, वो हाल ही में स्कूल एक साथ जा रहे हैं, हाल ही में। इट मीन्स के उन्होंने अभी जो है एक साथ स्कूल जाना स्टार्ट किया, एक साथ, पहले अलग अलग जाते थे सेपरेटली, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड गोइंग टुगेदर। बट कब से, लेटली, लेटली का मतलब क्या है, हाल ही में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज कि आई हैव बीन लर्निंग ग्रामर रिसेंटली, आई हैव बीन लर्निंग ग्रामर रिसेंटली, इट मीन्स के मैं हाल ही में ग्रामर सीख रहा हूँ, हाल ही में। ओके, हाल ही में मीन्स इन द प्रेजेंट टाइम, जो टाइम चल रहा है उसी में। आई हैव स्टार्टेड learning grammar. Likewise, you can say that she has been learning swimming. She has been learning how to swim lately. वो जो है हाल ही में वो जो है वो क्या सीख रही है, स्विमिंग जो है वो सीख रही है। सो दिस इज हाउ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला क्या था, when you talk about an action that started in the past and continues until now, and now जिसकी हमने अभी बात की, that is an action that is happening recently, you can say that has been happening recently, या simply you can say it has been raining, it has been raining, look it has been raining, देखो बारिश हो रही है। तो आप विदाउट मेंशनिंग टाइम एक्सप्रेशंस या विदाउट मेंशनिंग टाइम को मेंशन किए बगैर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज कर सकते हो। ओके, एंड द थर्ड यूजेज इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज स्टॉप्ड रिसेंटली, when you talk about an action that has stopped recently, like present perfect tense, present perfect tense क्या करता है, past को present के साथ connect करता है। you started doing something in the past and you complete it in the present time, तो आप कौन सा tense use करते हो, present perfect tense। Likewise, you can also use present perfect continuous tense for the action that has stopped recently, जो अभी अभी क्या हो, stop हुए हो। For example, I'm tired, I'm tired because I have been running. Now you see, जो कि अभी जो है ये stop हुआ है action, but it has the result in the present time. It has the result in the present time. Okay? In the present time में कौन सा result? For example, I'm tired because I have been running. मैं थक चुका हूँ, मैं थका हुआ हूँ। I'm tired, मैं थका हुआ हूँ। क्यों? क्यों का मतलब I have been running, मैं भाग रहा था, मैं भाग रहा था। इट मीन्स कि ये होने की वजह से जिसका जो रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, रनिंग की वजह से अभी मैं थक चुका हूँ। ओके, लाइकवाइज फॉर एग्जांपल, योर आईज आर रेड, योर आईज आर रेड, सॉरी, योर आईज आर रेड, रेड मीन्स लाल, आपकी आंखें लाल हैं। आपकी आंखें लाल क्यों हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैव यू बीन क्राइंग, हैव यू बीन क्राइंग, क्या तुम रोते रहे हो, क्या तुम रोते रहे हो? इट मीन्स कि यू वुड हैव स्टॉप्ड क्राइंग नाउ,
आपने अभी रोना बंद किया होगा, जिसकी वजह से आपकी आंखें क्या है, लाल हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। आई होप कि आपको इसका स्ट्रक्चर एंड इसका कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं वो समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी जो है एक्सप्लेनिंग टू यू के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होगा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कहाँ पे यूज होगा। दोनों में सिमिलैरिटीज भी हैं और दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।